Okay, so we'll start with average mixtures and allegations in today's class. So average is a very common concept. We are all aware about these concepts. Even in DI, you would have found that a lot of averages need to be found out, right? So what is an average? We'll study that. Then we'll also understand what is mixture and allegations. We'll see some of these questions and maybe some shortcuts as well to be able to solve these questions faster. So that is the agenda for today's class. So let us start by understanding meaning of average. So what do you mean by average? How do you define average? So average is a representative value. Representation of what? Representation of the entire data. So what does it really mean? It really means that if I want to find out, let us say, how good this class is in terms of academics. Say, for example, I want to figure out in terms of class. So what are the tools that are available for me to understand the quality level of classes, right? I may ask everybody. मैं ask you, इसके कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है, सबके मैं नंबर पूछ सकता हूँ. And then I may see that majority of the student are getting 70 marks, say for example. Right? Majority of the students are getting. So I would say, okay, let me assume this class, is a good class because it is a 70% marks. So this way of judging whether the class is good or bad by finding out what is it that most of the students are doing. This method is known as mode. मीन मीडियन मोड. ठीक है, ये सारे जो हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं किसके लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए. क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? एक सिंगल वैल्यू जिसके बेसिस में मैं ये बोल सकूं ये पूरे को पूरे मैं आई कैन नॉट पेंट एवरीबॉडी बाय अ सिंगल ब्रश, राइट? मान लेते हैं बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है इस क्लास में, तो मैं बोलूंगा यार बहुत तंग करती है यार ये क्लास, मतलब गड़बड़ है. बट इन रियलिटी इज एवरीबॉडी गड़बड़? 5-7 बच्चे होंगे जो पूरी क्लास की रेपुटेशन का दही बना रहे हैं. But for me, my problem is what is that I'm going to say कि पूरी क्लास में प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम कुछ स्पेसिफिक एरिया. So why do I feel this पूरी क्लास में प्रॉब्लम है? Because for me it is very difficult to pinpoint things. तो उसीलिए average is also a concept which will help you to generalize things and it will help you to make decisions. It is a single value that will help you understand about large number of things simultaneously. That is the very purpose of average, right? Of course, when I say representative value, once again, let's say I say, age, let's say the average age of this class is 22 years. Let's say that's right. So how do I get this 22 years as an average? We all know the formula for finding out average. So the formula for finding out average is you simply add all the values, right? You simply add all the values and divide it by number of values, and that helps you get an average. Now, if I say the average age of this class is 22 years, what do I really mean? 22 ऊपर भी है, 22 नीचे भी है. हाँ, तो इसका मतलब कैसे वो 22 कैसे आया? मैंने सबकी एज ले ली कि कोई 18 का था, कोई 17 का था, कोई 23 का था, कोई 24 का था, कोई 17.5 का था. मैंने क्या किया? सबको ऐड किया और फिर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो सबकी एज को ऐड करके मैंने 20 से डिवाइड कर दिया और मुझे एक वैल्यू आ गई 22 और मैंने कहा एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज 22. व्हाट डज दिस रियली मीन? इट मींस इसका जब मैंने कहा कि इस क्लास की एवरेज 22 साल है, इसका मतलब है एक हाइपोथेटिकली एवरीबडी इज हैविंग 22 इयर्स. इसका ये मतलब है. अगर मैंने कहा इस क्लास की एवरेज एज 22 साल है, इसका क्या मतलब है? सबकी उम्र 22 साल की है, ना ज्यादा ना कम. बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. लेकिन जब हम एवरेज करें और 22 आए, तो जब हम बोलते हैं कि इस क्लास की एवरेज 22 है, तो इसका मतलब यही है कि सबके पास 22 साल है. That is the basic meaning of an average. You understand this? Of course, the formula is very simple. Average sum of the values divided by number of values. So you may want to say average is equal to sum of the values divided by number of values. Therefore, sum of the values can be taken as average into number of values, and number of values can be always taken as sum upon average. समझ में आ रही बात?
तो 3 फॉर्मूले जैसे हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Similarly, we have average is equal to average is sum of the values divided by number of values. Sum can be given as average into number of values and number of values can be given as sum upon average. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मान लो मैंने कहा इस क्लास की टोटल एज 500 साल है, 500 years is the total age, ठीक है, and the average age is 20. तो बताओ कितने बच्चे बैठे हैं इस क्लास में? ये समझ में आ रहा है? क्या करोगे? टोटल एज डिवाइडेड बाय एवरेज एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया. उसी तरीके से मान लो मैंने कहा इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, हर एक की एवरेज एज 25 साल है, तो टोटल एज कितनी है इस क्लास की? टोटल एज है 500. मैंने कहा टोटल एज इसमें क्लास की 500 है और इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, तो एवरेज एज क्या हो गई? 25. ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, हम उसको इंटरचेंज करके अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, जो इस टाइप की हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, इसको बेसिकली अर्थमेटिक मीन बोला जाता है, एएम. इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, क्योंकि एक और चीज होती है जिसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोला जाता है, वो अभी मैं समझाऊंगा, या हार्मोनिक मीन, ऐसे एवरेज स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे. बट दिस काइंड ऑफ एवरेज वेयर वी सिंपली टेक सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज नोन एज अरिथमेटिक मीन. नाउ लेट अस से द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A. नाउ इफ आई इंक्रीज एवरी टर्म बाई k, सब वैल्यूज को मैंने k से इंक्रीज कर दिया, तो एवरेज विल एवरेज चेंज और नॉट? व्हाट विल द न्यू एवरेज बी? a प्लस k या a प्लस n k? a प्लस k. So the new average will be a plus k only. How as in यहाँ पे x1 plus x2 plus x3 so on xn करेंगे, प्लस k plus k कितनी बार आएगा? n टाइम्स. तो ऐड करेगा तो n इंटू k बनेगा, तो ये न्यू टोटल हो गया. इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय n. तेरे को ये तो पता होगा a प्लस बी बाई 2 अगर चाहिए तो मैं इसको a बाई 2 प्लस b बाई 2 कर दूं तो आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसको मैं अलग अलग स्प्लिट करता हूं, x1 प्लस x2 सो ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय n प्लस nk डिवाइडेड बाय n. लिख सकता हूं ऐसा, ये इससे कट जाएगा. इसकी वैल्यू क्या थी? a. इसकी वैल्यू थी a, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया? तो नया एवरेज कितना हो गया? a प्लस. इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी चेंज हम सारी वैल्यूज पे लाएंगे वही चेंज एवरेज पे होगा. इन्वर्टर वाले पे नहीं है क्या? क्या तार कैसे हिल जाएगा? नहीं, इट वाज इन इन्वर्टर पे था, ये वाला चलना चाहिए. चलो मैं बुलाता हूँ. तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चेंज हम सारी वैल्यूज पे लाएंगे वही चेंज मेरा एवरेज में होगा. उसी तरीके से मान लेते हैं हमने एवरेज किया, निकाला x1 प्लस x2 सो ऑन डिवाइडेड बाय n. मैंने सब में k कम कर दिया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? a माइनस के. समझ में आ रहा है? नया एवरेज क्या हो जाएगा? a माइनस के. और अगर मैंने सब में k मल्टीप्लाई कर दिया तो नया एवरेज मल्टीप्लाई बाय k हो जाएगा, या k की पावर n होएगा? क्योंकि अपन k कॉमन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय k. अगर मैंने सारी टर्म्स को k से डिवाइड कर दिया तो so new average will be divided by k. What I'm trying to suggest here is whatever changes you will bring on every term, that is the change that is going to happen on the average. अगर आप बोलो कि मैंने किसी में k बढ़ा दिया, किसी में 3k बढ़ा दिया, किसी में 2k बढ़ा दिया, तो क्या एवरेज k से बढ़ेगी? नहीं, उसमें फिर अपने चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम. ये बात समझ में आ रही है? So whatever changes we are making on every term is going to have that effect on average. ठीक है, एक बार ना अनिल को बुलाना है, पूछना, देखना एक बार क्या कर रहा है. फोन नहीं लाया मैं. Is vice versa true?
ठीक है, तो अभी क्या है कि जो चेंज हम हर वैल्यू में लाएंगे वही चेंज एवरेज में आएगा। अगर मैंने कहा कि मैंने एवरेज में 2 बढ़ा दिया, मैंने एवरेज में 2 बढ़ा दिया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है हर वैल्यू पे 2 बढ़ गया। अनिल ये इन्वर्टर वाले पे नहीं लगाया था क्या? नहीं, तो चल जाता है वैसे, उसको बड़ी बैटरी है तो अब या तो जनरेटर चला और या इसको चला, अगर नहीं है ना तो लाइट तो मिनट चला लेना 5 मिनट में। खुद तो नहीं बंद किया फ्लक्चुएशन के चक्कर में? पूरा गया क्या? इसी फेस में है? नहीं पूरा, ठीक है चलो ओके। So if whatever changes are made in the average is the same change made, that is the impact that is going to happen on all the values. एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। सेकंड हमें क्या समझ में आना चाहिए? Let us say the average of age of this class is let's say 22 years. बाहर से एक बच्चा और आ गया और उसकी उम्र 22 साल थी, तो इस क्लास की एवरेज एज बढ़ेगी या घटेगी? क्यों? तो नीचे डिनोमिनेटर भी तो +1 होएगा, तो फिर सब कंपनसेट हो जाएगा क्या? कितने लोग कह रहे हो ऐसा? डाउट है कुछ इसमें? नहीं डाउट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज क्वांटिटी में हमने एवरेज ऐड किया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से सब एवरेज का मतलब है, मान लो टॉफियां, ओ ज्यादा लोड हो गया इस पे, नहीं इस पे ज्यादा लोड हो गया, नहीं कोई बात नहीं, मैं जनरेटर बोलता हूँ चलाने के लिए। नहीं वो प्रोजेक्टर चलाना है ना, उसकी वजह से। सो अगर मान लेते हैं हमने बाहर से किसी और को बुलाया, ठीक है, और उसकी एज 23 इयर्स थी। अच्छा मैं एक समझा था टॉफी की टर्म्स में कि सबके पास सेम 22 टॉफीज हैं, किस सेंस में? हाँ। तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये कहाँ गया? Okay, so as I told you, if there is a quantity, let us say some values are there, 22, 18, 17, 19, 29. If the average is 22, so if you add 22 or multiples of 22, the average will not change. Similarly, if you remove 22 or multiples of 22, your average will not change, right? And average means equal distribution to all, right? So this is the basic essence of average. So how do we leverage this understanding? Let's say I give you a simple example and we have to find out average. So let's say we have some values like 312, 309, 287, 293, 288, 3, let's say, 27. Let's say I want to find out an average of these quantities. So let's say I'm having how many? 6 values. So how do we find? What is the formula for average? The formula for average is sum of the values divided by the number of values. That is what we need to do. Of course, you can simply add and you simply divide it by 6. But you really don't have to do this.
Why? Because what do we know? We know that average is a single value which will represent an entire data set. That is the basic meaning of an average. Now, if you look at these values, what do you think can be an average? The closest possible value of an average? 300. So let us assume the average to be 300. Now, in reality, if all these 6 values were to be 300, the average would have been 300. कोई फर्क ही नहीं पड़ता. But क्या सच में ऐसा है? नहीं है. Problem कहाँ है कि this is 12 फालतू, this is 9 फालतू, this 13 less, this is 7 less, this is 12 less, this is 27 extra. Whatever the variation is or the change is going to happen is only because of this. Can I say इसके पास 12 फालतू है, 13 की कमी इसको दे देगा तो इसके पास 1 की कमी बचेगी. इसके पास 9 फालतू है, 7 की कमी है, इसको दे देगा तो यहाँ +2 बचेगा. ये इसको 1 दे देगा तो इसके पास +1 बचेगा. ये अगर इसको 1 दे देगा तो इसके पास +11 बचेगा. यही बात है. -11 बचेगा. माय मिस्टेक. तो इसके पास -11 बचेगा. इसके पास -11 है, इसके +17 है. ये इसको दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा? +16. 27 है ना, 16 बचेगा. अब जो भी चीजें हैं वो 16 एक्स्ट्रा नेट में फालतू क्या बचा? 16. ये 16 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है? 6 लोगों में. तो 28/3 तो कितना बन जाएगा? 2.66. इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा मिलना है 2.66 मिलना. हमारा assumption क्या था? 300. तो आंसर क्या होना चाहिए? That will give me my answer. Now, of course, this is useful when the values are close to each other. अगर values बहुत दूर है तो ये गैप भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उसे करने का फायदा नहीं है. हाँ, आप कुछ भी ले, मान लो आपको लगता है भाई मैं तो 229, मान लो तुमने 287 मान लिया तो भी आ जाता. बट 287 में थोड़ा इसको जोड़ घटे में थोड़ा फालतू लग जाता है भाई. 287 से ये कितना फालतू है? 13 और 9 22 फालतू है, तो यहाँ +22 लिखते. और यहाँ पे कितना लिखते? 12 और 13 25, यहाँ +25 लिखते. इस तरीके से लिखते तो भी एवरेज करते. बिल्कुल सेम, 100% सेम है. कोशिश करो कि सिंपल वैल्यू उठाएं. कुछ भी उठा सकते हो, आंसर हमेशा आएगा. आंसर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो लाइफ आसान करनी है, मुश्किल नहीं करनी ना. 287 उठा के तो मेरे को दर्द होएगा ना जोड़ने घटाने में. 300 में आसान हो रहा है, इसलिए we have to try to simplify things. That's all we are trying to do. आ रही बात समझ में? Now, okay. Now this is like averages. Now, if you look at some of these questions in the exam, you need to understand certain rules of cricket. कई सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो क्रिकेट के बेसिस पे आ जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि लेट अस से so far you have played 50 matches and your average score in these 15 matches is 38 runs. In next match, how many scores did you score? How many runs did you make such that the average becomes 40? You understand this now? इसका मतलब क्या है कि आपने 50 मैचेस खेले जिसमें आपका एवरेज स्कोर कितना है? 50 मैचेस या 50 इनिंग्स बोलेगा रेदर. 50 इनिंग्स में आपका स्कोर 38 है. एक मैच और खेला, अब आपका एवरेज हो गया 40. So what is the score? What is the number of runs he must have scored? ये क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्रिकेट में इनिंग्स का क्या मतलब है. ठीक है, इनिंग्स और वो एवरेज कैसे निकाली जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार मैचेस में एक्चुअली में जब वो क्रिकेटर आउट नहीं होता तो उसकी एवरेज बढ़ जाती है, डिनोमिनेटर नहीं बढ़ता क्योंकि वो आउट नहीं हुआ. मान लो 50 रन बनाए हैं, अगले में उसने 60 बनाया और नॉट आउट रहा है. समझ में आ रहा है? नॉट आउट रहा है तो इसका क्या मतलब है? एक मैच कम ही माना जाएगा उसका. पहले 50 मैच है, अभी भी 50 ही माना जाएगा. लेकिन अगर आउट हो गया तो 51 मैच माना जाएगा. तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बॉलिंग एवरेज के रूल होते हैं कि भाई नहीं, उसका रन जुड़ जाएगा, उसका जो एवरेज जो है ना वो बढ़ जाएगा. डिनोमिनेटर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इनिंग्स ही हैज नॉट बीन आउट. स्कोर ऐड हो जाएगा. हाँ, नहीं मैच नहीं देखा ना, इसलिए अगर थोड़े रूल्स पता होने चाहिए. रूल मान लेते हैं उसने 20 मैचेस खेले, उसमें टोटल उसने 800 रन बनाए हैं. तो पर मैच इसका रन कितना हो गया? 800/20.
कितना हो गया 40। अगला मैच खेला और उसने 30 रन और बना दिए। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एवरेज, तो आप करोगे 21। एजम्पशन इज कि वो आउट हो गया था अगले मैच में, एक मैच खेल के 30 रन बना के आउट हो गया, इनिंग खेली। अगर मान लो आउट नहीं हुआ होता तो क्या होता, 830 ही रहते और इनिंग्स 20 होती है आपकी। इनिंग इसलिए बोलते हैं जितनी बार बैटिंग करी है, इनिंग इसलिए बोलते हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग होती हैं। क्या हाँ, एक आधा मैच देख ले समझ में आ जाएगा। ऐसे बॉलिंग एवरेज होता है कि भाई उसने 30 मैचेस खेले थे, इतने रन्स देके 500 रन देके 40 विकेट लिए थे, तो रन्स पर विकेट उसमें वो होता है। भाई किसी बैट्स बॉलर की एफिकेसी देखने के लिए कितना अच्छा है, वो ये देखते हैं भाई कितने रन देके उसने एक विकेट ली है, जैसे हम एवरेज देखते हैं। हाँ, तो जैसे बॉलर के लिए क्या है कि भाई पर विकेट, मतलब उसने जितनी भी विकेटें लिए पर विकेट उसने 35 रन देके एक विकेट निकाल लिया है। तो जैसे हमने इसमें एवरेज स्ट्राइक रेट होता है एक, और ऐसे ही एवरेज रन होता है, तो इतनी हर मैच में ऑन एन एवरेज ये 40 रन बनाता है। हाँ, उसमें सारे विकेट काउंट होते हैं, रन आउट नहीं काउंट होता उसका, छोड़ दे कुछ नहीं, हाँ काउंट होते हैं। वो जिसने वो ऐड किए हैं उसने विकेट लिए तो काउंट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब मान लेते हैं उसने 50 मैच खेल के 30 विकेट लिए हैं, ठीक है, या 500 रन देके 30 विकेट लिए हैं। अगले मैच में उसने कोई रन नहीं दिया और विकेट ले ली, तो उसका जो विकेट टेकिंग का रेट है वो बेटर हो जाएगा ना, क्योंकि रन्स तो बढ़े नहीं, डिनोमिनेटर में विकेट्स बढ़ गई। तो इसका मतलब है क्या, परसेप्शन ये आएगा कि इज अ गुड बॉलर। अब ऐसा भी हो सकता है उसने अगला मैच खेला, उसमें 40 रन दे दिए बट विकेट तो नहीं मिली उसको कोई भी, मान लो, तो उसका जो उसका स्टैटिस्टिक्स है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि रन्स तो बढ़ गए और विकेट उसको कोई मिली नहीं, तो न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया। दीज आर जस्ट फंडामेंटल सम बेसिक रूल्स ऑफ क्रिकेट। थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन आप देखोगे उसमें मिलेगा कि नो उसका स्ट्राइक रेट क्या है, वो अगले मैच में कितने विकेट दे ताकि उसका ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेटर हो जाए, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं इसलिए बस एक मोटा मोटा हिसाब किताब बैठा रहा हूँ आपके लिए। तो जैसे मान लो ये वाला ही है, 50 ओवर में 50 मैच खेल के उसका एवरेज कितना है 38। अगले मैच में उसने 40 अगला मैच में कितने रन बनाए ताकि ओवरऑल उसका एवरेज 40 हो गया। अब 2-3 तरीके से इसको सोच सकते हैं। टोटल इनिशियली मेरे रन्स कितने हैं, ये रन्स हैं। अगले मैच में कितने रन बनाए मुझे पता नहीं, दिस इज न्यू रन, दिस इज न्यू टोटल डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ मैचेस व्हिच इज 50 + 1, दिस न्यू एवरेज इज 40। यस, अंडरस्टैंडिंग। न्यू एवरेज निकाला है, क्योंकि पहले वो ओल्ड एवरेज क्या है 38, न्यू एवरेज क्या है 40। तो न्यू एवरेज के लिए न्यू टोटल अपॉन न्यू नंबर ऑफ मैचेस। न्यू टोटल कैसे निकालोगे, ओल्ड टोटल प्लस इस मैच का स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर, बिकॉज ये टोटल हो गया तो मैचेस भी बढ़ गए, इनिंग्स बढ़ गई, तो दिस अपॉन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आ रहा है 140, यानी इसने अगले मैच में 140 रन बनाए। ओके, दिस वन वे ऑफ डूइंग इट। यू मे थिंक लाइक दिस ऑल्सो, अगर अगले मैच में भी वो 38 रन बनाता तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हर मैच में उसको 2 रन फालतू चाहिए थे। इसका मतलब है 38 मैच में 2 रन फालतू, यानी 76 रन वो चाहिए और 40 रन इसके चाहिए, ये चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अच्छा 50 मैच के लिए, हाँ सॉरी 50 मैच है ना, तो 50 मैच के 2 100 रन वो चाहिए। भाई 40 बनाने के लिए अगर 50 मैच में 38 रन है, वो चाहता है 40 बनाए, तो हर मैच के लिए 2-2 रन बनाने पड़ेंगे। तो 100 मैच के 2-2 रन यानी 100 रन, और इस मैच के 40 रन यानी 140, यानी 140 रन बना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपने 140 बताया वो आंसर है। आप इस तरीके से सोच सकते हो इसको। आ रही बात समझ? सो यू विल हैव क्वेश्चंस ऑन दिस आल्सो। फिर ऐसा क्वेश्चन आता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 38 है, ठीक है, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का टेम्परेचर ये है, तो बताओ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पूछ लेता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो कॉमन करके कैंसिल आउट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स एज टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल कम अक्रॉस एज फार एज। मुझे याद नहीं है किसका, ये वाला A+ के
ये वाला मैं ये कह रहा हूँ कि ये 50 मैच में 38 एवरेज था, तो टोटल कितना रहा होगा, इतने रन रहे होंगे। अगले मैच में कुछ तो रन बनाए तो मैंने जोड़ लिया, ये टोटल न्यू रन आ गए। अब मैचेस कितने हो गए, क्योंकि रन बनाए और मैच भी खेला तो बदल गया मामला, वो बदल के 40 हो गया, ये दिया हुआ है। तो ये न्यू एवरेज है, न्यू टोटल बाय न्यू नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू, क्योंकि पहले 50 मैच खेले, अब एक मैच और खेल लिया, कितने मैचेस हो गए 51। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, देखो सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये सम आ गया टोटल, कितनी वैल्यूज का सम है ये 51 वैल्यूज का, क्योंकि 50 पहले हो चुकी हैं, एक और हो गई है, तो टोटल वैल्यूज हो गई 51। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। लेट्स से हम लोग यहाँ इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, हमारी उम्र मान लेते हैं 22 ईयर्स है, एवरेज में हमारी एज 22। वो जो उधर क्लास चल रही है वहां जो बच्चे बैठे हैं उनकी एवरेज एज मान लेते हैं 20 ईयर्स है। अब बताओ जो सारे बच्चे हैं दोनों क्लास के मिला के, इन सारे बच्चों की एवरेज एज क्या होगी, क्यों क्यों गिन लो, यहाँ देख लो 20 है। वेरी, सो इज द आंसर नॉट 21, क्यों? Okay. So basically, I mean, if you do 22 plus 20 divide by 2, so this is basically average of average. But the question was not finding average of average. The question was, what is the average age of all the students in both the classes? So average age of all the students का मतलब है पहले total age निकालना पड़ेगा और फिर number of students निकालना पड़ेगा। इस क्लास में मान लो तो गिन सकते हैं कि मान लेते हैं 18 बच्चे बैठे हैं, हर एक की एवरेज 22 साल है, मान लेते हैं ये हो गया। उस क्लास में 20 बच्चे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें पता तो नहीं, वहां पे डिवाइडेड बाय हमें 18 प्लस n करना पड़ेगा। सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट मैं बोलता हूं नहीं, तुम्हारा 21 आंसर सही है, तो क्या कंडीशन में सही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है। क्यों? अगर मान लेते हैं इक्वल है, कुछ भी है, वी डोंट नो, लेट अस से n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में भी हैं एंड n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में भी, तो टोटल ये बनेगा डिवाइडेड बाय n प्लस n बनेगा। सो यू कैन से n कॉमन निकाल के अपन 22 प्लस 20 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2n कर सकते हैं, n से n जाएगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 21 will be the answer. So if the number of students are same in all the classes, then average of average can be taken at, otherwise हमें total average निकालना पड़ेगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ग्रुप एवरेज के नाम से जानते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ ग्रुप एवरेज। तो ग्रुप एवरेज अगर मैं बोलूं तो इसका फॉर्मूला A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ वेटेड मीन। अगर मान लो 3 क्लास होती तो फॉर्मूला क्या बन जाता, A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये एक तरीके का क्या है, ये वेटेड एवरेज जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा एवरेज इज ए कॉन्सेप्ट, एक सिंगल वैल्यू से हम सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे वेटेड एवरेज जो होता है ना, वो जो पार्टिसिपेंट्स है उसकी इंपॉर्टेंस को कंसिडर करता है। कैसे, मतलब कहां पे यूज होता है वेटेड एवरेज, स्टॉक मार्केट। जैसे हम सेंसेक्स देख रहे हैं आजकल रोज गिर रहा है, कितने लोग लगे पड़े हैं उसमें एवरेज करने में, छोड़ ही दिया। स्टॉक मार्केट इज एवरेज कर करके नुकसान होता बढ़ता जा रहा है, बट एनीवे hopefully it will increase someday so everybody will make money। तो वो जो सेंसेक्स है वो एक जो रेट आता है, कितना चल रहा है बाय द वे, 16,000 समथिंग, 16,250 कुछ भी रेट है, कितना 16,875। ये निफ्टी का है, ऐसे ही बीएससी का अलग है। तो व्हाट इज दिस 16,875, दैट इज द प्रॉब्लम। ये कहां से आता है और ये क्यों चेंज होता है? It is weighted average of the 50 stocks, 16,200।
हाँ, तो 16,221 जो है ना, ये एक वेटेड एवरेज प्राइस है. इट इज नॉट एवरेज, इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट, सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स. निफ्टी में शायद 50 स्टॉक्स है ना उस लिस्ट में. तो 50 शेयर्स का जो प्राइस है उसमें वेट्स असाइन किए जाते हैं. वेट्स यानी इंपॉर्टेंस असाइन की जाती है. इंपॉर्टेंस मतलब मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फूड इंडस्ट्री को मिलती है, फिर क्लोथिंग, फिर शेल्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग एंड फिर सर्विसेज. इस टाइप से इंपॉर्टेंस होती है ताकि वो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमी का या मार्केट का दे सकें. दैट इज अ पर्पस. तो वेटेड मीन तो फॉर्मूला होता है, अगर आप कहीं देखोगे किताब में भी लिखा है W1. अगर मैं वेटेड मीन या वेटेड एवरेज क्या बात करूं, इसका फॉर्मूला होगा W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 so on till Wn Xn whole divided by W1 plus W2 plus W3 so on till Wn. If this weight becomes 1, then this formula is converted into arithmetic mean. अगर W1 W2 अलग अलग 1 हो जाएं तो क्या हो जाएगा, X1 plus X2 plus X3 divided by 1 plus 1 plus 1. So when weights are equal, यानी सबको बराबर इंपॉर्टेंस जब दी जाती है तो हम उसको अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं. अगर सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है तो हम उसको वेटेड मीन बोल देते हैं. तो उसकी अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इसलिए वेटेड मीन आता है. तो जो हमने ग्रुप एवरेज की बात करी है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरह का वेटेज है. जैसे मैंने कहा इस क्लास की एवरेज 22 साल है, लेकिन इसका वजन कितना दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उस क्लास का मान लेते हैं इस क्लास का एज मान लेते हैं 40 साल है एवरेज, और वहां पे 15 साल है. ठीक है, अगर मैं ओवरऑल एवरेज निकालूं तो कैसे पता चलेगा, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे इस क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो इस क्लास की ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाएगी, और अगर उस क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो उस क्लास की इंपॉर्टेंस ज्यादा मानी जाएगी, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो वेटेड मीन इज एज गुड एज ग्रुप एवरेज का कॉन्सेप्ट. समझ में आ रहा है? अब इसमें क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ये बनाए जा सकते हैं, मान लो दो ग्रुप है, मान लेते हैं एक में 5 बच्चे, एक में 5 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज मान लेते हैं 12 साल है. एक दूसरा ग्रुप है उसमें 3 बच्चे हैं जिसकी एवरेज एज 16 साल है. अभी आपस में खेलने लगे तो एक नया ग्रुप बन गया 8 बच्चों का. बताओ उस 8 बच्चों की एवरेज एज क्या है. इट कुड बी अ क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन, बट इट कुड बी अ क्वेश्चन. सो हाउ डू यू अप्रोच दिस, कैसे निकालोगे? पहले ग्रुप की एवरेज, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इनको मिक्स कर दिया हमने तो ये बनेगा 12 into 5. टोटल एज इस ग्रुप की है और इसकी है 3 into 16. टोटल एज ये बन जाएगी, डिवाइड बाय 5 plus 3. ये आ गया A1 N1 plus A2 N2 डिवाइड बाय N1 plus S2. आ रही बात समझ में? इसका एक और तरीका है सोचने का. अगर ये जो 3 बच्चे हैं इनकी उम्र भी 12 साल होती तो 8 बच्चों की एवरेज एज कितनी होती? ये बात समझ में आती है भाई? यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं 12 साल के हैं, जहां इतने बच्चे बैठे हैं भी 12 साल के, इन दोनों की एवरेज कितनी हो जाएगी? 12. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इन रियलिटी हर बच्चे के पास कितने फालतू हैं? 4 साल. तो टोटल कितने फालतू हो गए? 12 साल. ये 12 साल कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने? 8 लोगों में. कितने मिलेंगे? 3/2, यानी हर एक को 1.5 साल मिलेगा. हमने माना कितना था? 12. तो आंसर कितना होगा? 13.5. आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए. डायरेक्ट शॉर्ट. ये समझ लो कि 5 बच्चों में 12 टॉफियां थी, 3 बच्चों में 16 टॉफियां थी, और आपस में इकट्ठे हो गए तो एवरेज का मतलब सबको बराबर टॉफियां मिलेंगी. जो 3 बच्चे आए अगर उनके पास भी 12 होती और जो 5 बच्चे थे उनके पास भी 12 होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क क्यों पड़ा? इन 3 बच्चों के पास 4 फालतू थी. तो होगा क्या? बाकी लोग खोस लेंगे. और कैसे करेंगे? बराबर बराबर. तो कितनी टॉफियां हैं अवेलेबल लड़ाई के लिए? 12 टॉफियां. हर बच्चे के पास 4, 3 12. ये 12 टॉफियां कितनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है? 8 लोगों में. हर एक को 1.5 टॉफी मिल जाएगी. तो पहले सबके पास 12 थी तो 1.5 और मिल गई, 13.5 टॉफियां हो गई. ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व. या फिर A1 N1 plus A2 N2 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा. आ रही बात समझ में? ऐसे ही ग्रुप स्प्लिट होता है तो भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है. मान लेते हैं मैंने बोला एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें 8 बच्चे हैं. ठीक है, इन 8 बच्चों की एवरेज एज 13 साल है. इनमें झगड़ा हो गया, 5 बच्चे एक तरफ 3 बच्चे एक तरफ.
जो 3 बच्चे निकले उनकी एवरेज एज 15 साल थी, तो बताओ बचे हुए 5 बच्चों की एवरेज एज क्या थी? 8 बच्चे खेल रहे हैं, झगड़ा हो गया, 5 एक तरफ चले गए, 3 एक तरफ चले गए। जो 3 बच्चे बाहर निकल के गए वो बड़े बड़े बच्चे थे, उनकी उम्र 13 साल 15 साल थी। तो बताओ बचे हुए बच्चों की 5 साल के जो 5 बच्चे बचे उनकी एवरेज एज क्या है? दैट कुड बी ए क्वेश्चन। कैसे करोगे? एक तरीका तो ये टोटल एज था 8 इंटू 13, उसमें से बाहर निकल गए 5 बच्चे और कितनी ले गए? या 3 बच्चों को निकाल देते हैं, ज्यादा एक ही बात है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बच्चे निकाल दिए, 15 साल ले गए, यही है। ये वो बच गया, ये कितने लोगों में मिलेगा? ये 8 माइनस 3, ये करेंगे। इसका मतलब है पहले जो टोटल था वो A1 N1 था, उसमें से A2 N2 निकल गया, तो ये बच गया। ये बचा हुआ कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है? N1 माइनस N2 में। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 11.8 आ रहा है। नाउ वन वे ऑफ थिंकिंग दिस क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, कि हर एक के पास 13 टॉफियां हैं, ये 3 बच्चे भी अगर 13 टॉफियां लेके जाते तो क्या कोई फर्क पड़ता? इनकी भी ये 13 ही होती है एवरेज। लेकिन हर बच्चा कितना फालतू लाया? 2। टोटल कितना फालतू लेके गया? 6। ये कितने लोगों से छीना होगा उसने? 5 लोगों से छीना होगा। तो हर बच्चे से कितना छीना होगा? 1.2। हमने कितना एज्यूम किया था? 13, इससे 1.2 छीन लिया। तो यही आप आंसर निकाल रहे हो यहाँ पे। A1 N1 माइनस A2 N2 भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हैं। सो दैट इज बोथ द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग। So making some sense, how do we approach this question? कौन सा वाला? मैंने ये कहा कि भाई 8 बच्चे हैं, हर एक के पास 13 टॉफियां मान लेते हैं, झगड़ा हो गया, 3 बच्चे भाग गए। वो 3 बच्चे जो है ना वो 15-15 टॉफियां ले गए अपनी। होनी कितनी चाहिए थी इन पे? 13। तो हर बच्चा 2-2 फालतू लाया होगा। कहां से लाया होगा? बचे हुए 5 से। टोटल 6 टॉफियां आई, कितने बच्चों से आई? बचे हुए 5 बच्चे से। और बच्चे से कितनी टॉफी लाई होगी? 6 टॉफी आई 5 बच्चों से, पर बच्चा 1.2 टॉफियां ली होंगी। कितनी थी उनके पास? और 1.2 खोस ली, कितनी बच गई? 11.8, वही आंसर है। ठीक है। Yes. Are we making some sense on this averages? Now, I mean, a little, if you simply extend this idea, of mixture, in the sense, group average idea can be mixed with in the sense of mixtures and allegations. So let's start understanding mixtures and allegations, and I will connect you this topic of average to the mixtures and allegations. हाँ जी, क्यों अभी तो शुरू ही किया है? अच्छा चलो ले लो भाई, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, सांस लो सब लोग जोर जोर से, और रोको, और फिर धीरे धीरे रिलीज करो। है क्या अपना मीशू का खजाना दिखा रही है? हाँ, तो भी तो मीशू करें इजाजत है? ओके चलो। So what is a mixture? Let's start from there. So how do we really define a mixture? क्या होता है mixture? बनाना शेक। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। चलो, तो बनाना शेक मिक्सचर है।
ओके, सबसे कॉमन मिक्सचर कहाँ देखते हो आप? ना, सबसे कॉमन मिक्सचर था हल्दीराम का नवरत्न। उसमें क्या क्या होता है? मूंगफली, दाल, है ना, चने, मतलब शाम के लिए सब इंतजाम एक ही साथ होता है, एक आधा ड्राई फ्रूट भी होता है। So that is a kind of mixture because it is mixed. Many things are mixed simultaneously and therefore we call it as a mixture. तो हालांकि स्कूल टाइम में हम साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, याद है कुछ कुछ? नहीं याद है? पानी क्या है? पानी H2O, पानी देख। So when you say water, you say H2O, right? So what does it really mean? It means the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. Whenever two atoms of hydrogen will definitely combine with only one atom of hydrogen, then and only then water is formed. Right. Now, if you take this water from Nali, Nali, ठीक है, सीवर, ठीक है, और let us say a river, a pond, or filtered water, or a sea water. If it is a water, then it is H2O, right? That means if the ratio of certain things is fixed to make a particular thing, then it is known as a compound. क्योंकि पानी जो है उसमें बनाने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, यानी रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड, और इसका कोई चारा नहीं है। पानी का मतलब यही। हवा को मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि हवा में हाइड्रोजन होती है, जैसे H2 बोलते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन भी है, बट ऐसा थोड़ी ना आपस में मिल मिल के पानी टपक रहा है, सारे हवा पानी तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज ये दोनों अपने आप में इनर्ट वो हो जाती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेज हो जाती हैं, इनर्ट गैसेज हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द, वो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तुमने सारा, sp और वो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके वो न्यूट्रल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जब भी हम कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट यानी ऑक्सीजन इटसेल्फ इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हमने देखा होगा, कितने 107 108 क्या 118 कुछ नया आ गया क्या? 2-4? अच्छा, आर्टिफिशियल बना रहा, अच्छा बनाते जा रहे, तो ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट्स हैं। किसी भी रेशियो में जब उसका रेशियो डिफाइंड नहीं होता ना, उसको मिक्सचर बोलते हैं। जब रेशियो डिफाइंड नहीं होता है किसी भी चीज में, हम किसी भी रेशियो को मिला दें तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर के साथ एक वर्ड आता है एलिगेशन। एलिगेशन का क्या मतलब है? इल्जाम, इल्जाम लगाना। इट वॉज एलिज्ड, है ना, दैट जो भी आपका दोस्त है उसने आपके साथ अच्छा नहीं, इट वाज एलिगेशन लगा दिया, एलिज कर दिया, इट वाज एलिज्ड। तो बेईमानी, क्यों एलिगेशन कब होता है? जो गड़बड़ होती है, बेईमानी होती है वहां पे। तो मिक्सचर और बेईमानी का बहुत क्लोज रिश्ता है, बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है क्योंकि सब लोग मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। बेईमानी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एटलीस्ट दैट इज आई एम एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड, मतलब काटना पड़ेगा। But in all practical purposes, even if you don't do, you need to know how it is done to be able to catch, to get rid of the wrong. Ethical hacking जैसे बोल देते हैं, it's kind of something. You need to understand how things are done to be able to get hold of it. Now, very common mixtures जैसे आपको पता ही होगा, लाल मिर्च में क्या मिला देते हैं? लाल मिर्च, ईंट, यस, ईंट का वो जो होता है ना, मिक्स करके चूरा बना के डाल देते हैं, ठीक है। और दाल में येलो कंकड़ आ जाते हैं। धनिया में क्या मिलता है? धनिया में सूखी धनिया, पिसी हुई धनिया, हॉर्स डंग, हॉर्स का डंग,
उसका देख हॉर्सडंग सेम धनिया जैसा लेता है, पता नहीं चलेगा. People mix bone, crushed bone in wheat flour. ठीक है. और कुछ तो सुनने में आया चाइना से आर्टिफिशियल राइस आते हैं, और एग्स जो है आर्टिफिशियल एग्स आते हैं. सो दीज आर ऑल, बहुत सारी चीजें हैं. तो इसीलिए पतंजलि व्हेन दे स्टार्टेड देयर एडवर्टाइजिंग, इफ यू रिमेंबर few years back, वो हमेशा वो ये बोलते थे शुद्ध था, मतलब the only thing, so they were catering to that segment of the market where people were not able to buy branded products. Of course, none of you sitting here would have been exposed to this kind of food because you all buy quote and all branded products at least. आशीर्वाद का आटा खाते होगे, पिल्सबरी खाते होगे, या ज्यादा थोड़ा सेंसिटिव हो तो खुद मंगा के उसको धो धवा के पिसा के सामने करके करते हो, right? So you guys are in a situation, most of us are in a situation where we don't have to face this, but there's a huge chunk of population who don't have access to these branded products. So therefore they buy mostly unbranded and open products. उसके अंदर ये सारी गड़बड़ होती है. And therefore when Patanjali said that he wanted, वो क्या डायलॉग मारता था कि शुद्ध का point was कि, and same thing was started by Sahara actually long time back. Sahara introduced this concept कि भाई आप हमसे ले लो, उसी रेट में देंगे जो लोकल मार्केट का रेट है, बट उसमें मिलावट नहीं. हाँ, मिलावट के जहर से बचाइए, ऐसा, that was the tagline. हाँ वो तो that is the whole point. But of course it is not just about allegation, it is also about our ability to get a fine mixture. Because अगर आप लोगों ने अगर आप विस्की पीते हो तो आपको पता होगा बड़ा मेजर करके लोग डालते हैं, इतना पानी और इतना सोडा, क्योंकि टेस्ट का फ्लेवर में फर्क पड़ जाता है. ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने पापा लोगों को देखा नहीं है. भाई नहीं करते हैं, बोले हम तो नीट वाले हैं सर, चक्कर ही नहीं है, आप छोड़ो, क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट वाटर व्हाट सोडा, यू गाइस. हाँ तो ऑफ कोर्स, सो ओके, सो एवरीथिंग इन लिमिट. तो ये कैरियर सर, ये ना जो क्या बोलते हैं सर, ब्रीजर में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो वही लेते हैं ना. इट्स अ डायरेक्ट कंजम्पशन बॉटल्स. सो पॉइंट इज, it is not just a vice in the sense that it's always wrong to mix, but every time you need to have a fine balance of different things to get a certain quantity. For example, in our labs, let's say you have a concentrated acid, and let's say 80% concentrated acid is there, and you want to dilute it to certain percentage. So you should know what is the kind of water that needs to be added for it to get diluted to a particular point. Or two different type of dilutions are available, and we are looking at a particular type of dilution. उन सब के लिए भी ये काम में आता है. तो वहां सब बहुत सारी जगह काम में आता है. तो हम ये सारे वाले क्वेश्चंस आज हम देखना चाहेंगे. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस. तभी एलिगेशन और मिक्सचर दे वर्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि जब भी हम मिक्स करेंगे चीजों को तो उसमें एलिगेशन लगेगा ही लगेगा, गड़बड़ होगी. तो मिक्स हम कब करते हैं? whenever there is a difference. So difference of what? It could be a difference of price, it could be difference of quality, it could be a difference of quantity, it could be a difference of purity. So that is where mixtures come into picture. Now for example, let me ask you this question. Let's say we are having two types of tea. Tea A, let us say this is 40 rupees per kg, and we have another type of tea B, let us say it is 50 rupees per kg. And you are not able to sell this tea. आप ये बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है, और ये नहीं बेच पा रहे हो क्योंकि मार्केट से इसका रेट ज्यादा है. तो क्या करोगे? देखा, बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, कोई चक्कर ही नहीं, पता है इसको. मिक्स करेंगे. अब मान लेते हैं अपन 45 का बेचना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू मेक द प्राइस ऑफ 45. बेचना चाहते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि उसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का भी कॉन्सेप्ट आ जाए. फिलहाल हम सीधा ये मानते हैं कि मेरे पास 40 रुपए की चीज है, 50 रुपए की चीज है. मुझे पता है अगर 45 की बन जाती तो हमारा काम चल जाएगा. तो हमें इसको कितने बनानी? 45 की. कितना कितना मिलाएंगे? आधा आधा. यानी आधा किलो ये ले लो, आधा किलो ये ले लो. 20 रुपए का ये 25 रुपए का 45 का बन जाएगा. एक एक किलो ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 1 किलो ले लोगे 40 का, 1 किलो लोगे 50 का, 2 किलो लोगे 90 का, पर केजी हो गया 45 का. कहने का मतलब जो रेशियो है 1:1 होनी चाहिए. लेकिन अगर आपको 42 रुपए का बनाना है तो, या 42 रुपए 25 पैसे का बनाना है तो, नाउ हाँ 42, अच्छा 42, ओके, गॉट इट. सो 42 और 42.5, देन व्हाट शुड बी द
ratio in which we need to mix. Now this is where the problem will start. Now let us say we are talking about 42 rupees. Can I not say it is simply a question of average? What am I saying? I am saying I want to mix this X kg, for example. I want to mix this Y kg such that the average price becomes 40. यही वो indirect question तो यही है. How do you find out an average? Average can be found out by taking total price. ये 40 into X इसकी प्राइस प्लस इसकी प्राइस 50 into Y. समझ में आ रहा है? टोटल प्राइस. दिस इज द टोटल प्राइस. कितनी क्वांटिटी हो गई? दिस वैल्यू शुड बी 42. ये इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी, एवरेज ही तो निकाल रहे हैं. आई जस्ट सिंपली वांट टू ऑर्गेनाइज एक्स एंड वाई. मैं एक्स और वाई को एक तरफ लाना चाहता हूं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम टेकिंग 40x प्लस 50y इज इक्वल टू 42x प्लस 42y. लिख सकता हूं मैं. x को मैं यहां ले आता हूं. सो आई विल हैव 40x माइनस 42x इज इक्वल टू 42y माइनस 50y. चलेगा? ओके. इफ आई कैन टेक x कॉमन. एक बार सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं. आई कैन टेक 40 minus 42 is equal to y common. I can take 42 minus 50. लिख सकता हूं मैं. Can I say x upon y it can be taken as 42 minus 50 divided by 40 minus 42. आ रही बात समझ में? Now आपको पता है इन दोनों की क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो मैं उधर ऊपर -1 कर दूं और नीचे भी -1 कर दूं. चलेगा? तो ये मेरा बनेगा x upon y is equal to 50 minus 42 divided by 42 minus 40. Right? Now, if you want to find out an answer, obviously the answer is 8/2, which is 4/1. But what I'm trying to say है क्या? नहीं, मैंने मेरी ना कोई गलत नहीं लिखा मैंने. ये देखिए यहाँ पे नहीं 42x माइनस 40y. यहाँ पे ये आपने इस तरफ पुट किया है तो आप जब यहाँ पे इसको डिवाइड में लेकर तो x बाई y सॉरी x into ये हो गया.